Hello students, good morning. Hope you all are fit, fine and healthy. Students, do you have an aim in your life? Aim matlab what you want to be. When you will grow up, what you want to achieve. It is very important students to have an aim in life. Because aim अगर होता है आपका तो आप फोकस करके उस चीज़ को डिटर्मिन हो जाते हो कि आई हैव टू अचीव दिस गोल. It is very important to have an aim in life. Now I am going to give you an example of a person who was not normal. The name of that person is Albert Einstein. He was not good in studies. His parents were very worried that what he will do. He was not good in all the subjects, but he was good in maths and science. And you know, जो थ्योरीज उसने डेवलप की हैं उन पे आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी डिपेंडेंट है. द जीपीएस वी डू यूज़ जीपीएस, वी यूज़ रिमोट कंट्रोल. वी डू ब्रश, paste. So all these are inventions done by Albert Einstein. The present story we are going to discuss is about Arunima Sinha. She is the main character of the story and it is a kind of interview. तो ये जो स्टोरी है बच्चे, ये आपको इंस्पायर करेगी टू बिकम अ बेटर पर्सन. ये क्या इनकलकेट करेगी आप में? फेथ दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? टू हैव एन एम इन लाइफ सो दैट यू वुड बी एबल टू फोकस अकॉर्डिंगली. Arunima Sinha was born in 1988. This lady is without legs. She has prosthetic legs, artificial legs. But her aim, her focus was very much determined, very much sure that she will achieve her goal. You know what happened in the story? That 6 onwards, it's a kind of interview and she tells that 6 onwards she started taking interest in the games very seriously. And she qualified a test and she received an interview call. But there was a discrepancy in the date of birth certificate and she had to rectify. इसके लिए वो कहाँ पे जाती है? दिल्ली जाना पड़ता है उसको. एंड शी हैड नो रिजर्वेशन, उसकी कोई रिजर्वेशन नहीं होती. तो शी बोर्डेड अ जनरल कंपार्टमेंट. जनरल कंपार्टमेंट में चली जाती है और वहाँ पे रात को चेन स्नैचर आ जाते हैं जो उससे गोल्ड की चेन स्नैच करने की कोशिश करते हैं. एंड इन ऑर्डर टू एस्केप, जब वो उनका अपोज करती है तो वो लोग क्या करते हैं? दे थ्रो अरुणिमा आउट ऑफ द ट्रेन एंड शी लॉस्ट हर लेग्स. जब वो गिरा देते हैं, शी लॉस्ट हर लेग्स. इन द मॉर्निंग पीपल केम टू नो एंड दे हेल्प्ड हर. दे डोनेटेड देयर ब्लड एंड some were making assumptions like that it is a kind of suicide attempt. She might be without tickets and in order to escape from punishment, it might be possible that she jumped out of the train. Arunima felt very bad because what was the truth? They don't know. उनको पता ही नहीं था truth क्या है. And somehow she was okay. She was feeling better.
and doctor said very soon you would be able to walk on your own legs. One day she was reading about mountain routes. तो उसके ब्रदर इन लॉ बोलते हैं कि आपको मिस बचेंद्री पाल से मिलना चाहिए. तो बचेंद्री पाल, she was a lady, she climbed mountain ranges and वो जमशेदपुर के लिए निकल जाते हैं. When she met that lady, she saw her condition, that she is without legs, though she is so determined, so desperate to fulfill her goal. She called her Sherni, tigress, and she gathered her courage, and she was ready to climb Everest. A group of people was there. She was climbing, and on the way किसको मिलती है? They were dead bodies. नाइटफॉल हो जाता है और वहाँ पर ऑन द वे वहाँ पे वो किसको देखती है? डेड बॉडीज़ को देखती है. डेड बॉडीज ऑफ द पीपल हु ट्राई टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. कुछ ग्रुप के पीपल होते हैं, दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट गो अप, दे रिटर्न बैक. बट अरुणिमा was very determined. She knew that she had to fulfill her aim. वो कोशिश करती है और वो अपने एम को अचीव कर लेती है. वहाँ पे वो अपना इंडिया का जो फ्लैग है, तिरंगा, उसको अनफोल्ड करती है, लहराती है. And she was very happy. She wanted to shout at that time that yes, I have done it. मैंने ये चीज़ कर दी है, कोई भी ऑब्स्टेकल मेरे को रोक नहीं पाई है. She wanted to say that I am on the top of the world. I have achieved. But मैंने जो ड्रीम देखा था मैंने उसको पूरा किया. एंड इन द इंटरव्यू वो ये भी बताती है कि वहाँ पे उसने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जो भी वो गैस सिलेंडर्स, कैंस, लाइट्स, जो कुछ भी वो लेके गए हैं, उसने क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखा. वो अपने आप की अपनी लाइफ को किसका गिफ्ट मानती है? माउंटेन्स का गिफ्ट मानती है. बिकॉज जो उसकी जो पहचान है उसकी, जो पीपल उसको रिकग्नाइज करते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि वो माउंटेन्स पे चढ़ी है. और वो क्या मैसेज देती है यूथ को कि हमें सिर्फ एक गोल रखना चाहिए लाइफ में, एक एम रखना चाहिए, और उस एम को अचीव करने के लिए वी हैव टू बी वेरी डिटर्मिन्ड, वी हैव टू बी वेरी पंक्चुअल. Only then we would be able to fulfill our aim. The message of the story is, this lesson is, success is not final. It doesn't mean कि आपने एक टाइम अटेम्प्ट किया और उसी टाइम आपको सक्सेस मिल गई. फेलियर इज नॉट फेटल. फेटल होता है, इट इज़ नॉट हार्मफुल. अगर आपको फेलियर आपको मिली है, आप फेल हो गए एग्जाम में, इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को दोबारा अचीव नहीं कर पाओगे. इट इज़ करेज दैट काउंट्स. आपका जो करेज है वो इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू बी वेरी करेजियस दैट आई विल डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज. थैंक यू.